Hello friends, welcome to Artist and Heart to Heart. आज another Sunday, another beautiful program, another artist coming on your way. एक बहुत प्यारे आर्टिस्ट और एक बहुत प्यारे इंसान. She is a trainer, she is a singer, she is a motivator, she is a musician और a wonderful budding artist, Sirin Sarkar. Now, let me just see, क्योंकि उन्होंने ज्वाइन करना है सिरिन ने. Yeah, let me just call her. She's a wonderful person and we're just waiting for her. और बहुत सारे सस्पेंस, बहुत सारे सरप्राइजेस हैं उनके पास. Excellent lady, excellent mother, excellent family member, excellent artist, excellent trainer, and an excellent person. So let me just call Sirin. Okay, I hope she's here. Yes. Hi, Krishna ji. Hi, how are you? I absolutely have been brilliant. It's so good to see you after such a long time. Yes, and looking as usual, stunning, beautiful, and Oh, come on. Look who's very talking. Oh, As usual, God. the pinkish skin tone and flawless and absolutely vibrant. Oh God. मैं बता दूं अपने जितने भी हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं सिरिन को. सिरिन से मेरी मुलाकात was not on an artist podium. It And was not a very conventional meeting at all. yes, it was not at all a conventional meeting. It was absolutely different और बहुत ही अलग तरीके से हम लोग मिले और ये जान भी नहीं पाए कि शायद ये भी नहीं जान पाई और मैं भी नहीं जान पाया that apart from what we are there for, we were meant for something else as well. तो बट धीरे 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 जब बातचीत बढ़ी और एक दूसरे से बात करने की हमने बात की और बहुत सारे लोग साथ में बैठे एंड suddenly we did Antakshari and there you are, Sirin, with her natural self beating everyone with the golden voice and of course golden lyrics. Sirin, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा. Thank you so much, Krishna ji. और to be very honest with you, all the viewers जो भी हमें अभी देख रहे हैं, जब पहली बार मेरे और कृष्णा जी का इंटरेक्शन हुआ था, it was like, yes, as on a trainer's platform, we agreed on something instantly. And then later came to know that, apart from being some connection issues with Sirin, I suppose. Chalo, in the meantime, when Sirin is joining us, let me just see what best I can do. It was not हम लोग दिल्ली में नहीं मिले. It was in Dehradun where we were there in a university called UPES और we were there as a trainer. तो वहाँ पे Sirin मुझे मिली और as a trainer of course and she's excellent in training as well. तो वहाँ पे फिर हम लोगों से बातचीत हुई and then suddenly after few days Sirin से पता लगा कि she is also an artist and she is doing
lot of shows as an anchor, as an artist. So first of all, thank you everyone for joining in. And since there's an issue with the internet, there's a connection issue with Siren. So we're just waiting for her to join again. And in the meantime, I welcome everyone who is with us. Oh, Siren. Okay, can I? Okay, I'll call her. Just a second. I'll call her. Yes. Yeah, Was I I think there's some. audible, and I think my visual has completely gone, right? Yeah, नहीं अब बिल्कुल अब first class बिल्कुल you're there as beautiful as ever. Thank you. Yes, Siren, you were saying something. Sorry. No, I was just saying, like, it was very unconventional, and then later I came to know that, you have this quality of being a singer, and you have been into performances, like, your tabar-tor performance, jisko bolte hai. And I kind of, keep on watching all your, like, performances, jo bhi aap mujhe bhejte, and it feels kind of proud, and it feels kind of, very different when you're, like, associated with somebody who's into so many things and doing it so perfectly. So it's amazing to be in touch with you again. And same to you, Siren. I'm same to you. और मुझे पता लगा that you're not in Delhi, you're in Chandigarh अभी. Right at this moment, I'm in Chandigarh. Actually, Delhi is my sasural, and Chandigarh mein we have our house. So we kind of, keep on shuttling between both the place because of this pandemic. Otherwise, like, I'm settled in Delhi right at this moment and working from there in Delhi. Good. और जब मैं I was talking to Siren and a few days back, so she was telling me that she's very busy because she's going to Mumbai for some shows, and then of course she's gone to Calcutta for some recording. तो Siren, Calcutta में recording क्यों? There's a lot of lovely studios in Delhi. Yes, firstly, Calcutta is my motherland and my hometown, so I know a lot of people work is done like this out there, The Delhi में मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा time लगेगा, because I came to know about you, I came to know about few other people, so dots को जोड़ने में और connect Oh God, again. Siren Siren से जब मेरी बात हुई तो she was going to Mumbai. इस pandemic time maybe she had some events there. तो वहाँ पे the best part is जब भी ये कहीं इधर उधर जाती हैं दिल्ली से बाहर तो months. Yeah, Siren, now you're back. Now you're back. Okay. Okay. So ये जो गाना मैं plan कर रही थी, these 3 numbers I was planning for last around 8-9 months. फिर से बताइए, because when you were talking about this you went blank. एक बार 3 numbers का फिर से बताइए. Yeah, this 3 like songs that I've brought as a remake version or like cover songs. Yeah, this I have been planning for a long time. So मैं मेरे जो composer है जिसने ये पूरा compose किया है, I had been talking to him for about last 8-9 months. In the month of April only, I wanted to go to Delhi, in Calcutta, because my parents also stay there. So it's quite frequent for me to go there in Calcutta and stay there. तो मैं बात कर चुकी थी, बोल चुकी थी, सब कुछ हो चुका था. It's just that pandemic, could not let it happen. And finally, on September, I had to go because my mom was not keeping well. Because I went there, तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ कर लेते हैं. Because I didn't have too much of headache, मैंने अपना स्केल भेज दिया, उसने गाना बना दिया, फिर मैं रिकॉर्डिंग कर शूट हो गया. It's that easy, for Calcutta. Right. क्या बात है. Of course, जहाँ पे आपका रेपो बना होता है तो obviously, और सबसे बड़ी बात ये है कि you've been working throughout, recording throughout Calcutta, तो उनको पता है कि आपका स्केल कौन सा है, आपका पिच कौन सा है, आपका what scale are you the best at. तो of course. तो ये जो दिल्ली में बनने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, and I'm sure with time it will happen in Delhi as well. Definitely. और वो 3 गाने जो आप कह रहे हो, these are the remakes or these are the cover songs or these are your own? These are the cover songs for sure. But definitely the version जो मैं लाई हूँ, that is a remake version. उसमें only we have taken the lyrics and the very basic sur of that particular song. Feel, genre और इसका जो tempo है, हमने completely change कर दिया. बंगाली गाना तो आपने सुन ही लिया है. हिंदी गाने में एक मैंने आज रिलीज किया है, एक शायद मैं another 10-15 days में रिलीज करूँ.
वाह, आज जो आपने रिलीज किया उसका मैंने टीजर देखा एंड इट वाज सुपर्ब, इट वाज ब्यूटीफुल, द That was all प्रेजेंटेशन वाज performance based एक्सीलेंट। song. इट वॉज हाँ ऑल हाँ। परफॉर्मेंस बेस्ड सॉन्ग, और मेरे जो डायरेक्टर है उन्होंने कहा सिर्फ डांस करो, सिर्फ डांस करो, सिर्फ डांस करो, एंड आई वाज लाइक मेरा एक्सप्रेशन लो, मुझे डांस नहीं आता। दे सेड लाइक शोज करना है, स्टेज पे जाना है, तो इट हैज टू बी परफॉर्मेंस, सो दिखाओ दैट यू कैन मूव योर बॉडी एंड ऑल्सो इट वाज लाइक super hilarious. But again, with the tempo of the song, the body language and the dance movements were going fantastic. The the result actually has come out very well, so I'm kind of happy about it. आपको आपको मिस्टर भाटिया ओम साई राम कह रहे हैं, एंड देयर आर अदर मोर पीपल हु हैव जस्ट सेड हाई टू यू, सो वो स्क्रॉल हो गया है। Thank you very much, Bhatia sir. Thank you very much, Om Sai Ram. He is a And very senior person. He's a very senior person and a lovely human being, and he always gives blessings to all of the people who come to my show. Beautiful person. और मुझे लगता है कि ब्यूटीफुल पीपल ऑलवेज अट्रैक्ट ब्यूटीफुल पीपल, वो आपको Yeah. देख के ही लगता है कृष्णा जी। बाप रे। अच्छा, when I heard your teaser, Sirin, जब मैं आपका टीजर सुन रहा था तो उसमें सिर्फ मुझे 30 सेकंड का वो दिया, तो आई वाज सो एक्साइटेड, तो मैंने कहा कि आई विल नॉट लिसन और आई विल नॉट सी द फुल सॉन्ग, आई विल लिसन टू द फुल सॉन्ग व्हेन आई एम देयर ऑन द शो विद यू। तो मुझे आप 2 लाइनें अभी गा के सुनाइए। बिल्कुल वो सुनाऊंगी, लेकिन ये मत कीजिएगा, प्लीज लिसन टू द फुल सॉन्ग, क्लिक द लिंक एंड गो टू द यूट्यूब, लिसन टू द फुल I will. In fact, I had, लेकिन वो होता ना जो ओरिजिनल लाइव। सुना दूंगी उसका, तो आप मेरे सामने आ जाइए, मैं सामने बिठा के आपको सुनाऊंगी, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जल्दी फायदा होना ही चाहिए। वो जल्दी समय आएगा, बिकॉज वेरी सून we'll both be having a good dude song together. Right, I'm absolutely keeping my fingers crossed for that. Yes. और Yes. मैं सबको थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट, Oh God, there's another. I think there's some issue with her connections. Thank you, Bhatia ji. You're also a gem of a person. Thank you, Mr. Bhatia. Bhatia ji, आपका और again आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है. You're a very positive person. Let me just see what has happened to. Okay. सिरिन की आज नया एल्बम, नया सॉन्ग रिलीज हुआ है, एंड दैट इज व्हाट वी गोना हियर टुडे। वो हम सुनना चाहेंगे, बट लेट मी जस्ट सी। ओम साई राम बलविंदर जी, ओम साई राम। लेट मी जस्ट सी कि सिरिन हाँ ओके, सो मैंने सिरिन को वापस रिक्वेस्ट भेजी है। Oh, Siren, I think there's a lot of network problem in my phone, in my area, especially this area. No problem, no problem. Yes, Siren. I think वो 2 लाइनें हो जाएं यार। बिल्कुल बिल्कुल। और 2 लाइनें गाने से पहले मैं सबको यही बताना चाहती हूँ कि हम बॉम्बे के सिंगर्स को, बॉम्बे के परफॉर्मर को बहुत लाइक्स देते हैं, बहुत पसंद करते हैं, व्यूज देते हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज देते हैं। तो अगर हमारे अपने लोकल आर्टिस्ट को भी थोड़ा सा हम सपोर्ट करें, आई थिंक दे कैन ऑल्सो डू वंडर्स। बस हम ये थोड़ा सा भूल जाते हैं, ये तो घर के बाजू में ही रहते हैं, इसको क्या देखना है, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आप देखेंगे, पसंद करेंगे, तो वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ आपको इन रिटर्न दे सकते हैं एज एन आर्टिस्ट। तो आई होप आप सब देखेंगे, एंड आई एम श्योर आप सबको अच्छा लगेगा। चलिए मैं 2 लाइन शुरू करती हूँ। जाते जाते कोई मेरे खुशियों को ले गया, सोनी सोनी अखियों को गम कोई दे गया, जो लगाई है आँख भर आई है, आस जो लगाई है आँख भर आई है, इतना भी कोई सताए न रब्बा, जिंदगी में कोई कभी आए न रब्बा।
जो कोई तो फिर जाए न रबा, देने अगर मुझे बाद में आंसू, तो पहले कोई हंसाए न रब्बा, तो पहले कोई हंसाए न रब्बा। क्या बात है, थैंक यू। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा Ceren, जी। you're majorly a Bengali, coming from Calcutta, so or Chandigarh, and then Delhi, and then of course lot of cities all across India. तो ये आपका पैशन था या आपने सोचा था कि कभी कृष्णा के साथ इस शो में आएंगे? नहीं, मैं सोचती तो बहुत थी, लेकिन आज मेरे को ये अपॉर्चुनिटी आपने दे दिया तो आई एम एब्सोल्युटली प्रिविलेज्ड और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मल्टी सिटी, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक था फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, तो मैंने सोचा कि ऐसे एक प्रोफेशन को चूज कर लिया जाए। और आप बीइंग ए बंगाली, आपको पता ही होगा कि बीइंग ए बंगाली इट्स ऑलवेज लाइक हमारे घर में गाना, पढ़ाई, ये सारे कल्चर लाइक इट्स अ वेरी पार्ट ऑफ इट, जैसे खाना खाते हैं सुबह शाम ना, इट्स लाइक हम लोग सुबह शाम रियाज करते हैं टाइप। तो डेफिनेटली वो था एक पार्ट हमारा। सो एंकरिंग एंड सिंगिंग केम ऑटोमेटिकली, and that is how my shows also kind of started coming in. फिर धीरे धीरे I started training, तो training में भी बहुत सारे जगह पर I had to travel, and I am absolutely in motivational training right at this moment. So I'm whatever the experience I have kind of gathered over the years, so I'm kind of doing motivational sessions and doing motivational speeches, delivering speeches. So it's kind of passion, love for something, and it automatically happen. और कहते हैं कि आप बहुत अच्छी तरह से जानेंगे कृष्णा जी, कहते हैं कि स्पिरिचुअल लेवल पे आप थोड़ा सा काम करते हैं, तो मुझे पता है कि हमें एक विश्वास होता है कि हम जैसे अपने जिंदगी को जैसे सोचेंगे, हमारी जिंदगी वैसे वैसे बनता जाएगा। इट विल टेक दैट काइंड ऑफ शेप। तो मुझे लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने जैसे बिलीव किया, जैसे सोचा, मेरी जिंदगी वैसे ही बनी है, एंड आई एम काइंड ऑफ हैप्पी अबाउट इट। वाओ वाओ, मोनिका जी आपको वेरी नाइस कह रही हैं आपके गाने के लिए। शी इज कॉम्प्लीमेंटिंग यू एंड आल्सो ओम साई राम। थैंक यू वेरी मच। Okay, Ceren, before I talk more about your singing career, let me go back to your, chota chota age, bachpan ka age. Abhi bhi you're just, I think, 12, 13 years probably. But Yes. going back to your schooling, kahan se aapne schooling kaise kiya? And what was the best part about your schooling, and what was the worst part about your schooling? Well, there is no worst part. But always the best part, because my parents were very understanding. मैं अपने मम्मी पापा की एक लौती बेटी थी, और मतलब हूँ, और my parents kind of never brought me up as a girl. They always kind of tried and taught me with the neutrality, कि तुम एक इंसान हो और इंसान बन के बड़े बनो, और जो भी करना है तुम करो. I actually stayed in a very remote area of West Bengal. That place is called Howrah, and which is connected with Kolkata, but no, it's not even Kolkata. It's like far away from Kolkata. And I did my schooling also from a very with a very limited sources from a regional school, jahan par Bengali was the mother tongue and all. So I had a very happy childhood, and everything about school I liked, because my parents never forced me कि तुम्हें first आना है, second आना है, 80% marks लाना है. They were like very happy. Study because study is important. Play because play makes you feel happy. Gana gao kyunki this is in the family. And be happy about life. So I had a very happy childhood. So I could never kind of what I'll say. मतलब मैं कभी complain नहीं कर सकती कि there's something bad about my childhood. Never. Because मैं जो मांगती रही, मुझे मेरे parents ने सब कुछ दिया, but definitely with a guidance. कि मुझे स्विमिंग करना है, तो दे ऑलवेज गाइडेड मी कि स्विमिंग के लिए ये करना है. आई वांटेड टू राइड अ बाइसाइकिल, सो दे बॉट मी अ बाइसाइकिल एंड दे टोल्ड मी लाइक दिस इज हाउ यू शुड डू इट. सो आई थिंक आई हैड अ वेरी वेरी settled and a very nice and happy childhood. So no complain about my childhood. Okay, no bad part about my childhood. You were saying that the singing is in the family, तो थोड़ा सा background बताइए. Yes, my father was a radio player.
मतलब रेडियो आर्टिस्ट, एंड ही वाज अ तबला प्लेयर आल्सो एज वेल, वोकल्स में भी थे, बट एट द सेम टाइम he played for Ranji Trophy and he was a Bengal captain also in cricket. So it's kind of वाओ। sports and music together. Then मेरे तो सारे बुआए जो है वो एक श्यामा संगीत की आर्टिस्ट है, कुछ लोक संगीत गाते हैं। तो मेरे 3-4 मतलब मेरे टोटल 6 बुआए हैं, सारे गाना गाते थे, लेकिन बाकी 3-4 तो रेडियो आर्टिस्ट ही थे। तो इट काइंड ऑफ इट वाज देयर इन माय फैमिली। तो वही मम्मी बताती रहती थी कि चलो चलो प्रैक्टिस करो, नहीं तो बुआ क्या सोचेगी, पिट्टी करेंगी, ये वो। सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड, and So it you went took well. you took a formal training for vocals or what Yes, it was? yes, that was also mandatory. I Hmm. did my senior diploma in Indian classical vocals के ऊपर for about 5 years I took. So I started when I was around 8 years old and I left when I was 13 years old. उसके बाद तो फॉर्मल और कुछ किया ही नहीं, और मुझे गाना गाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। क्या बैठ बैठ के गाना गाऊं, तब तक तो मतलब कुछ खेलो, मस्ती करो, कुछ घूमो फिरो, कुछ करो। तो बैठ के रियाज करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। बट अभी खासकर आई खासकर अंडरस्टैंड। जब आप खासकर जब आप राग गा रहे हो तो वो इट इज लाइक अ बिकॉज टुडेज यंगस्टर्स दे डोंट इवन नो व्हाट एग्जैक्टली राग्स आर यस, एंड एब्सोल्युटली। यू नो व्हाट इज अलाका आकार एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। और उस वक्त तो हमें ऐसे सिंस आई आल्सो डिड माय विशारद, तो हमें तो बैठ के जब तक वो राग के पूरे अंदर डेप्थ में नहीं जाओगे आपको ये नहीं पता कि इसमें क्या लगना है क्या नहीं लगना। तो उसकी बंदिश गानी सिंगिंग अ सॉन्ग एंड सिंगिंग अ बंदिश इज एब्सोल्युटली डिफरेंट और यू नो बोथ एब्सोल्युटली। अपार्ट। तो यस यू आर अच्छा, राइट। मैं और उस मैं एज में वहीं पे आना चाह रही थी। तो आपने कहाँ से शुरू किया कृष्णा जी? मतलब ये मैंने आपका, मैंने एक पार्ट आपका देखा है, फॉर्मल पार्ट, द ट्रेनर एंड लाइक वेरी फॉर्मल प्रोफेशनल, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि यूर अ परफॉर्मर एंड इतनी मतलब शिद्दत के साथ आप परफॉर्म करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन कहाँ से और कहाँ से आपने शुरुआत की थी? कॉम्बिनेशन अगेन इट इज लाइक आई गाने का शौक तो हमेशा से ही था। और दो माय पेरेंट्स वर नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर बट देन ऑफ कोर्स आई थिंक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके जीन्स में वो सुरीलापन आ ही जाता है जब आपके पेरेंट्स भी या कहीं आपके फोर पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स कहीं ना कहीं वो अगर गुनगुनाते भी हैं और एक अच्छा दो फॉर्मल ट्रेनिंग ना भी ले रखी हो तो भी अगर अच्छा गुनगुनाते हैं तो भी आपके अंदर वो अगर कोई ना अगर कोई। उनको सुनने का भी कान होना, तब भी मुझे लगता है वो बच्चों में जाता है। Absolutely, absolutely. तो मैं तो first, I mean, from right from the class first in prep, I'm singing, I'm performing. But वही है ना कि being from middle class family, तो एक होता है कि भाई आप पहले सेटल हो जाओ, पहले रोटी पानी का जुगाड़ करो, पहले you know all those stuff. तो वो चीज and being a boy, लक्ष्मी, लक्ष्मी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं yeah, ये पैंडेमिक में 7-8 महीने में एज अ परफॉर्मर मैं समझ चुकी हूँ कि लक्ष्मी जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाँ और लक्ष्मी जी आज तक हमने कभी इम्पोर्टेंस दी नहीं वैसे सिरेन हमने राइट। यू आर राइट। शायद इसीलिए हार्ड वे वी हैड टू अंडरस्टैंड दिस। Yeah, but then it's okay. I mean, this is probably the hard way. लेकिन एक बात बताऊं, जो इंसान की बेसिक नेचर होती है ना वो कभी चेंज नहीं हो सकती। नहीं, यू आर राइट। So बिल्कुल सही। I don't know. I don't know. Still, Lakshmi is important, but then again, for me, happiness is more important. Smile is more important, and making others smiles are more important. तो इट इज, बट देन लक्ष्मी के बिना हैप्पीनेस इज अगेन वेरी डिफिकल्ट, I know, कृष्णा जी। I know. कोई बात नहीं। अब स्टार्ट करेंगे। अब आई एम श्योर, आई एम श्योर। अब हमारा वक्त है सिरिन। बिल्कुल, इवन आई होप सो। Yeah, so फिर कॉलेज में and then कॉलेज में performances, but then again going back and did my MBA, then I did my PhD और ये सब मैंने करता गया for my professional। but वही है ना जब एक घुस जाता है एक म्यूजिकल अर्थवॉर्म तो वो फिर तंग करता है। तो बस वो और वो साथ साथ कभी साथ छूटता नहीं। हाँ वो साथ साथ चलता गया। So whenever I used to get chance for performing, whether it is devotional or it is Bollywood or it is you know संगीत और गीत और whatever, तो I used to do it और वहां से चल रहा है। तो नाम इधर भी है और नाम उधर भी है। You've seen my work, I have seen your work, excellent trainer you are। तो and I've seen your videos, excellent performer you are। तो मुझे इतनी खुशी हो रही है। तो when I spoke to you, मैंने कहा Siren is the right girl to talk to। थैंक यू वेरी मच। और मुझे लगता है कि द फीलिंग इज म्यूचुअल। इवन आई काइंड ऑफ रियली आइडलाइज यू अ लॉट बिकॉज दिस इज अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन। एंड आई रिमेम्बर, मैं सबको ये बताना चाहती हूँ,
जिस जगह पर एक्चुअली कृष्णा जी और मेरा बहुत एक लेवल पे मैच हो गया था, जब हम हमारा खुद का एक ट्रेनिंग होता है बिफोर वी एक्चुअली फेस द स्टूडेंट्स एंड वी एक्चुअली डिलीवर द ट्रेनिंग, तो वहां पर बताया जाता है कि हम कैसे स्टूडेंट्स को ट्रेन करें। तो कृष्णा जी को किसी ट्रेनर ने पूछा कि बहुत सारे बंदे चाहते हैं कि मैं कुछ और बनूं, कुछ और बनूं। तो कृष्णा जी और मैंने दोनों ने एक ही जवाब दिया था कि अगर आप सिंगर भी बनना चाहते हो बन सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि एमबीए बनना बंद करना पड़ेगा। मतलब आप एमबीए भी बन सकते हो और सिंगर भी बन सकते हो, तो आप डॉक्टर भी बन सकते हो, डांसर भी बन सकते हो। मतलब डॉक्टर Correct. बनने के लिए आपको डांसर बनना बंद नहीं करना है या फिर छोड़ना नहीं है। सो बिल्कुल। दैट इज वेयर वी कनेक्टेड सो वेल एंड प्रोबेबली दैट इज द रीजन मुझे लगता है कि एक ट्रेनर या फिर एक मोटिवेशनल स्पीकर या फिर आप जैसे प्रोफेशनल होने के बावजूद ये परफॉर्मेंस को हम आगे बढ़ा रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि दैट इज अगेन श्योर पैशन। अगर आप चाहते हो तो एनीथिंग इज पॉसिबल। तो Absolutely. आपको देख के तो आई गेट अ लॉट ऑफ मोटिवेशन कृष्णा जी के, दिस इज रियली लाइक दिस इज रियल लाइफ एंड अगर आप बिलीव करते हो तो इट इज पॉसिबल। Absolutely, absolutely, and same goes from my side to you. So, Sirin, what are the projects which are coming up now? टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, अभी जो मैं ये कवर सॉन्ग्स बना रही हूँ, दीज आर टू बेसिकली शो पीपल एंड टेल देम लाइक आई एम अवेलेबल फॉर योर प्रोजेक्ट्स एंड योर वर्क. So if you think like I'm suitable, hire me, get me, because with a very professional attitude, the work will be done. That's number one. And number two is like I want to bring more cover songs so that people also see kind of what kind of quality I have. See, I'm a very next door girl type. I can motivate a lot of people because जब मैं कैलकाटा में भी थी, वहां पर भी मुझे देख के बहुत सारे लड़की बहुत मोटिवेटेड होती थी कि सिरिंदी आप जैसे चीजों को देखते हो, हैंडल करते हो, आप जैसे काम करते हो, मुझे हमें भी वैसा करना है. तो बीइंग अ वुमन, अगर मैं मेरे फेलो वुमन को या फिर मेरे जो जूनियर आर्टिस्ट है किसी को भी इनकरेज कर सकती हूँ, मोटिवेट कर सकती हूँ, तो दैट विल बी माई फर्स्ट प्रायोरिटीज. तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि और भी कवर सॉन्ग्स मैं लाऊं और भी प्रोजेक्ट्स करूं इसके ऊपर, सो दैट लाइक मेरे जैसे जो बडिंग आर्टिस्ट है वो इनकरेज हो एंड दे शुड ऑलवेज लाइक स्टिक टू द फाइट. कि नो मैटर वॉट एवर इज हैपनिंग इन लाइफ, अप्स एंड डाउन्स, इट्स अ पार्ट ऑफ इट, लेकिन हमें वी शुड कंटिन्यू. सो दैट्स अबाउट इट. अभी तो यही प्लान है, आगे आगे देखते हैं. प्लानिंग तो बहुत कुछ और है. जैसे मेरा जो सेशंस है, मेरे सेशंस को आई कॉल देम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. आपने भी देखी होगी फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे. This is called Zindagi Na Milegi Dobara, and these are the motivational sessions that I conduct. This can be individual sessions and this can be like group sessions also. तो यहाँ पर I actually talk to individual for their problems and try and give them the real life solution. क्योंकि हम बहुत सारे टाइम पे either प्रॉब्लम को बंद कर देते हैं या फिर प्रॉब्लम को समझते ही नहीं है. तो वी ट्राई एंड गिव देम रियल लाइफ सोल्यूशन, क्योंकि प्रॉब्लम को बंद करके प्रॉब्लम यू नेवर गेट द सोल्यूशन. प्रॉब्लम विल ऑलवेज बी देयर. तो अगर आप थोड़ा सा इसको समझो, प्रॉब्लम व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड ट्राई एंड फाइंड आउट व्हाट इज द सोल्यूशन, इट इज पॉसिबल. तो मुझे लगता है कि ये बस 2 ही प्रोजेक्ट है मेरे पास अभी. तो गाने को आगे बढ़ाना है और उसके साथ साथ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जो है, ये मोटिवेशनल सेशंस है, इसको भी आगे लेके बढ़ना है. Wow. So, Sirin, when did you get your first professional break? Because I know that you are an anchor as well. So, it started as an anchor first or it started as a singer first? मतलब एक singer से start हुआ या anchor? Singing too, I picked up singing pretty late. मुझे गाना गाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. I used to sing all by myself. Like मतलब गाना गाऊंगी, किसी के सामने गाऊंगी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. Since like I'm a very talkative person, so I started as an anchor only. Basically मैं corporate में काम करती थी. And corporate में काम करते करते मुझे ETV बांग्ला में my first break, break in the sense like they were auditioning. So I went there, around 15-16 people were there. So I got selected. And that is how my journey started. The moment I got selected, I left my corporate job. But those people who were there in the corporate, they had seen me working on ETV. So they have started calling me कि मेरा एक इवेंट है, मेरा एक शो है, और 2,000-2,500 में वो लोग मेरे को काम करवाते थे. कि सीरीन तो आजा, देख हमारे पास 2,000 रुपए है, ले ये और काम करते. So it was a kind of good relation, good start. और मुझे लगता है कि मैं तो कैलकुलेट करती थी, अगर आज एक दिन में 2,000 मिल रहा है तो 10 दिन में तो फिर वो 20,000 हो जाएगा. फिर वो कैलकुलेट करके जाती थी. And it started that way. And I'm talking about, this is way back 2003.
तो बहुत साल हो गए, 17 years. That करेक्ट. is how I started, and with a lot of popularity, I actually touched the peak of my popularity when I joined Big 92.7 FM as an RJ. So Okay. 2006 में in Calcutta, I joined as a RJ in Big 92.7 FM. For about 2 years, I continued there. उसके बाद मैंने छोड़ दी क्योंकि मुझे लगा कि full time RJing was kind of hampering my shows and other things. तो फिर धीरे 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 I got married in 2012 and shifted here. तो मेरी तो जिंदगी की geography बदल गई. It was a love marriage? Yes, absolutely. He's a Punjabi, I'm a bomb. It has to be like, a love marriage. कौन सी बंगाली फैमिली आके पंजाबी को बोलेगा कि मेरे बेटी को शादी कर लो? I remember the film. And trust me, when my parents met Sanjeev's family, they had a culture shock. हो क्या रहा है? I mean, शादी में थोड़ी ना कोई दारू पीता है और पैसा उड़ाता है. यहाँ पर तो सब कुछ हो रहा है, अयाशिया. Oh my God, मुझे आपकी कहानी विक्की डोनर जैसी लगती है. Almost, kind of, yes. Yeah, of course. Oh God, lovely. अच्छा, तो then I mean you started as an RJ and then धीरे. So when did you started as a motivator? When I came here, I took around 2 years break because my son was born and he was very young. So in 2014 and 15, I started getting offers, not exactly offers, rather there was somebody known to me who was doing college sessions. And then he asked me whether you'll be able to do it or not. So that is how I started. I started as a normal C2C trainer, from corporate to campus to corporate. And then धीरे I realized my forte and my potential is all about motivational sessions. I'm a very good motivator. I'm a very good my delivery for motivation is very, very strong. And definitely I have my presentation and everything. So it is basically customized made. Suppose there's a corporate, there's entry level people, they're senior people. There are people who are very skillful, but then their performance is very weak. तो उन लोगों के लिए अलग से कस्टमाइज करना, जो कॉलेज स्टूडेंट है उन लोगों के लिए अलग से कस्टमाइज करना. So motivational sessions is completely my forte. So that is how I realized it. Wow, people are saying hi to you. Chandrika ji says hi to you. Tarun Tandon is saying hi to you. By the way, Tarun का आज birthday भी है. Tarun Tandon, happy birthday. So Tarun Tandon, happy birthday. Tarun ji, happy birthday to you too. Okay, so this is how the motivational thing started, right? So Abhi, what do you enjoy the more? I mean, the corporate trainings and the motivational trainings, or your singing or an anchoring? What exactly? Both are very, very exclusive, But singing definitely needs a lot of practices. हालांकि मुझे लगता है कि मोटिवेशनल सेशंस के पहले भी बहुत सारे प्लानिंग एंड डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड. बट मुझे लगता है कि दोनों का अपना अपना मजा है. एंड a lot of people say if you're a trainer, if you're a motivational speaker, then how come singer? ये दोनों प्रोफाइल तो मैच ही नहीं करते. तो मुझे दोनों प्रोफाइल मैच नहीं करवाना. मैं जब गाना गाती हूँ, I'm a singer. When I give motivational session, then I'm a motivational speaker. वहां पर मैं गाना नहीं गाती. और जब मैं गाना गाती हूँ वहां पर I don't deliver motivational session. So दोनों ही अलग अलग सत्ता है, अस्तित्व है मेरी. और I think I'm very happy, kind of with the blend that I have. Wow, thank you, Tarunji. Same to you, Tarunji. You enjoy your day today. This reminds me, Siren. ऐसी बहुत बार हुआ है कि मॉर्निंग में क्या होता है, मेरे सेशंस होते हैं इन सम कॉलेज और यूनिवर्सिटी और कॉर्पोरेट, एंड पता लगा शाम को मेरे कोई इवेंट है. सो मॉर्निंग में व्हेन वी आर charged up and when we are हम अपना गला फाड़ रहे होते हैं and then ये वॉइस मॉड्यूलेशन कर रहे होते हैं, कहीं पे जोर से चिल्ला रहे होते हैं, कहीं पे कम, कहीं पे सॉफ्टली बोल रहे होते हैं, एंड इन द इवेंट वी हैव टू बी इन सुर. तो पता लगा कि जब तक हम लोग खत्म किया कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और शाम तक हमारा गला बैठ गया और हमने जो गाना गाने जाना है तो उसके बाद पता नहीं क्या क्या चीजें और कर रहे हैं, टेकिंग सम मेडिसिन और टेकिंग व्हाटएवर. तो ये भी बहुत बार. डज इट हैपन टू यू एज वेल?
Yes, that definitely does happen, but मुझे तो लगता है कि गाना गाने के नाम पे ही ना मेरा गला खराब होने लगता है. So I don't know that psychology और भगवान जानबूझ This के goes, ये करते हैं this कि goes with me. This goes with me as a. तो मैं तो भगवान को बहुत कोसती हूँ कि मेरा मतलब गाना गाने से पहले ही क्यों शुरू हो जाता है. ये साइकोलॉजी है कि उनका कोई प्रॉब्लम है, मुझे पता नहीं. बट somehow I do have a feeling कि जब माइक के सामने गाना गाते हैं तब somehow it actually Yeah, it clicks. It clicks. It clicks. So I Right. personally feel it is psychology also, because when we are giving an exam, that gives a psychological kick to us that stress तो आना ही आना है, because it's an exam anyway. And for us, और हम जैसे आर्टिस्ट के लिए, आप जैसे आर्टिस्ट के लिए, और हम जैसे trainers के लिए, probably who are dealing with a lot of it public, तो हम लोगों के लिए तो वैसे भी it's like a huge big exam, क्योंकि single person with thousands of public and probably I don't know कितनी पब्लिक तो होती है, उसमें अपना परफॉर्मेंस देना, फिर ये सोच के कि परफॉर्मेंस में कोई भी निच ना आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम्स ना आ जाए. सो आई थिंक एंड गॉड हैज बीन सो काइंड एंड ग्रेट, एंड आई एम श्योर कि Oh आपके yes, परफॉर्मेंसेस में for भी sure. कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई होगी. सो वाओ. नहीं, मैं आपका परफॉर्मेंस भी देखती रहती हूँ कृष्णा जी. मुझे एक बात बताइए, एक एक मैंने आपको देखी है, द काइंड ऑफ जिल एंड फायर यू हैव व्हेन यू डिलीवर एज अ ट्रेनर. लेकिन जब आप गाना गाते हो, आप में मतलब एक एक क्या बताऊं, एक सेटलमेंट आ जाती है, सूद आ जाती है, लगता है कि दिस गाय इज द मोस्ट सॉल्व पर्सन ऑन दिस अर्थ. तो ये बैलेंस कैसे करते हैं? मतलब आई डोंट एकदम नो. हाई एनर्जी एंड सुपर फायर एंड उसके बाद देन एकदम सेटल्ड एंड डीप डाउन अ पर्सन इज परफॉर्मिंग. कैसे कर लेते हैं आप? I think both both professions require your character into it. तो जब, एंड आई एम श्योर ये आपके साथ भी होता होगा, क्योंकि जब आप व्हेन यू आर इनटू ट्रेनिंग और आई एम इनटू ट्रेनिंग, देन वी आर इनटू दैट कैरेक्टर, वी आर इनटू दैट. मतलब हम लोग के लिए और कुछ भी नहीं है. मतलब मैं, आप यकीन मानिए, जब मैं ट्रेनिंग देता हूं, जब मैं सेशंस देता हूं, तो इट इज देयर एज इफ आई एम अ पर्सन हु इज द ओनली सोर्स फॉर द पीपल हु आर देयर सिटिंग देयर एंड दे वांट टू लर्न फ्रॉम मी. सो आई हैव टू गिव माय बेस्ट. सेम वे, और उसमें जब बेस्ट का मतलब होता है, उसमें बहुत सारी चीजें, एनर्जीज, एंथुजियाज्म एंड द वोकल्स एंड द वॉइस मॉड्यूलेशंस, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं. एंड व्हेन आई एम परफॉर्मिंग, अगेन देयर आर पीपल हु आर लुकिंग ऑन मी, और वो अपने उस इवेंट के लिए, चाहे वो डिवोशनल इवेंट हो, चाहे वो बॉलीवुड इवेंट हो, चाहे वो मस्ती वाला इवेंट हो, दे आर लुकिंग एट सिंगर एज टू एन आर्टिस्ट, कि वो उसको माहौल बनाए और उस इवेंट को सक्सेसफुल बनाए. तो आई थिंक इट्स लाइक ये हर आर्टिस्ट के साथ होता है, जो भी कैरेक्टर वो कर रहा होता है वो उसमें घुस जाता है. सो प्रॉब्ली मैं शायद कोशिश करता हूं कि उस कैरेक्टर में घुस जाऊं. इफ आई एम इनटू डिवोशनल, आई बी प्योरली पैशनेट एंड वेरी काम इनटू डिवोशन. व्हेन आई एम इनटू मस्ती, तो आई थिंक ये आपके साथ भी आई एम श्योर होता होगा. सिरेन, Yeah, I'm sure, but then normally my मेरा जो कैरेक्टर है, it's all मस्ती एंड एनर्जी. तो वहां पर मैं थोड़ा सा कंट्रोल करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है. मैं काम तो बिल्कुल नहीं रह सकती. So I'm always on kind of high energy type. But no, yes, I it, believe there is a switch for you. That switch is like, the moment I switch it on, I am on fire, and then I switch it off, I'm calm and then composed and working. So hats off to you. I believe it's a great नहीं, थैंक यू quality. सो मच. आई थिंक इट्स ऑल ब्लेसिंग्स, क्योंकि और जिनका, और मैं ये समझता हूं कि जिनका काम होता है वो खुद करवाते हैं, क्योंकि ये ऊपर वाले की कहीं ना कहीं शक्ति जरूर है. वो अपना काम खुद करा देते हैं. अगर हम किसी के लिए भी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इवन वे आर ट्रेनिंग, तो ऊपर वाला ये कहता है कि ये तू इस काम के लिए आया है, तेरा मैं साथ दे रहा हूं. Similarly goes for any event. So I think I'm truly blessed, and मैं thank you करता हूँ, शुक्राना करता हूँ उस प्रभु का कि हमें इतनी हिम्मत दे रहा है और हमारे थ्रू लोग enjoy कर रहे हैं. So I think जी. that is what I चंद्रिका मैम जो है वो बता रहे कि कृष्णा जी sings from heart and enjoys. तो ये बता रहे कि आप सिर्फ दिल से गाना ही नहीं गाते हो, खुद एंजॉय भी करते हो, तभी जाके हम सब आपको इतना एंजॉय करते हैं. तो So this how goes truly she mentioned. absolutely true, and this goes for you as well. क्योंकि अभी भी जब आप 2 लाइनें गा रही थी, तो आप उसके अंदर बिल्कुल जमी हुई थी, और मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये ये सिरेन है या क्या.
And that is the charisma. That is the charisma of any artist, I think, Sirin. And मैं आपकी बात पे बिल्कुल सहमत करता हूँ कि people are looking forward to Bollywood artists, people are looking forward to Bombay artists, जबकि Delhi, Calcutta, UP, all these small other cities लोकल other than आर्टिस्ट जो होते हैं ना, दे आर local वेरी artists के स्ट्रॉन्ग अंदर लोकल आर्टिस्ट, और मुझे लगता बहुत है कि ये मास जो सब मिलके बड़े बड़े आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हैं, यही मास अगर छोटे छोटे आर्टिस्ट को सपोर्ट करे तो कृष्णा जी, ये छोटे छोटे आर्टिस्ट कैन डू वंडर्स. I ओनली think दे नीड better than सपोर्ट, लव. yes, better than what the other. I'm not saying that I'm not saying any comparison. मैं कोई comparison नहीं कर रहा हूँ, but I नहीं नहीं, think बिल्कुल it is par, क्योंकि इनको भी थोड़ा सा अगर मोटिवेशन मिल जाए, थोड़ा सा, क्योंकि हम मोटिवेशन देते हैं, अगर हमें कोई मोटिवेशन दे दे तो what else do we want? एब्सोल्युटली. Kiran, I want a song from you, please. ओके, आई एम श्योर यू लाइक हिंदी ओनली. नहीं आप बंगाली में, I was just about to tell you, एक बंगाली सॉन्ग हो जाए मजेदार. ओके, सो बंगाली में अभी कभी आप लोगों ने सुना है बंगाली? नहीं. हाँ मैं तुम्हारे भालोबाशी. अच्छा, भालोबाशी वाला छोड़ दीजिए. for an artist, I believe it is the utmost, the first duty of an artist to love everyone. Yes. तो वो तो मुझे दिखता है आपके परफॉर्मेंस में भी, वो एकदम भर के आप देते हैं. तो आई बिलीव दैट इज द रीजन आपको इन रिटर्न सबसे इतना प्यार भी मिलता है. तो चलिए मैं 2 लाइन कोशिश करती हूँ. आई एम श्योर यू ऑल लाइक इट. Yes. যাবার বেলা পিছু থেকে ডাক দিয়ে কেন বলো কাঁদালে আমায়? যাবার বেলা আমার মন বুঝি মন নয়, আমার মন বুঝি মন নয়, যাবার বেলা পিছু থেকে ডাক দিয়ে কেন বলো কাঁদালে? मैं आपको थोड़ा सा मीनिंग समझा देती हूँ. मीनिंग, हाँ मुझे थोड़ा सा समझ आया, बट हाँ पूरा समझाइए. जी, ये दिस इज द लेडी इज सेइंग कि मैं जाना चाहती हूँ और जाने के पहले मुझे अगर पीछे से आप बुला लोगे तो ये जाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरे भी अंदर एक मन है, वो बहुत नरम है, और तुम्हारे पास जाने को वो बेकरार है. तो ऐसे जाने के पहले मुझे बुलाया मत करो, तो फिर मैं भी नहीं जा पाऊंगी. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द सॉन्ग. Wow. Chandrika ji saying is beautiful. Very हाँ, बंगाली लिरिक्स सर बहुत बहुत सॉफ्ट और बहुत रोमांटिक होते हैं. तो आपको सुन के ही ना यू फील, अगर आपको समझ में आया, यू फील दैट इज द रीजन प्रोबेबली रविंद्रनाथ टैगोर गॉट द नोबेल प्राइज, बिकॉज जब एक्चुअली अंग्रेजों ने सुना कि व्हाट एग्जैक्टली ही इज राइटिंग एंड क्या फील है उसमें, दैट इज द रीजन दे कुड नॉट स्टॉप देमसेल्फ कि चलो इसको दे ही दो, एंड ही इज द ट्रू bearer, flag bearer. Undoubtedly, Bengalis, they have beautiful voice, they have excellent voice structure, they have excellent pitch, और I'm great, I'm grateful. बहुत अच्छा, beautiful. आपके लिए बहुत compliments आ गए. Very nice, beautiful voice. Chandrika ji saying, Monica ji saying, lot of people are saying beautiful voice. Wow. Thank you so much. Amitav ji is watching. Amitav ji, I met him, I believe, during Delhi for a long back, at around 7-8 years back. He's also very, very nice soul and extremely professional person I have come across. Wow. Yeah. Rajiv ji is watching us. Rajiv ji is CEO of a company called IATB. I am the best. And इनके बारे में बता दूं सिरिन, ये एक नए सिंगर्स को प्रमोट करते हैं, तो आई एम श्योर ही इज वाचिंग यू एंड ही इज अ कजिन. मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा जो YouTube चैनल है सिरिन सरकार ऑफिशियल, SIRINSARKAR ऑफिशियल, तो इसमें मैंने आज ही एक गाना रिलीज किया है विच इज अ वेरी पेपी नंबर, और वहां पर आप मुझे डांस करते हुए भी देखेंगे, हालांकि रिकॉर्डिंग हुआ है. Let me do the honors for you. All the people who are watching, please subscribe, please watch Sirin with her YouTube channel. शेयर कीजिए, bless और कीजिए. आप प्यार करेंगे तो हम जैसे आर्टिस्ट will actually we can give you so much more. Wow.
वाह, राजीव जी कह रहे हैं नाउ वन फ्रॉम यू। मैं क्या गा सकता हूँ उनके आगे यस सिरिन यस जी का। यस। नहीं नहीं, Come on. ऐसे बात हो ही नहीं सकता। अब मैं ना वो पिच मतलब टुवर्ड्स द एंड के लिए सेव करके रख रही थी क्योंकि अच्छा, सबसे अच्छा चीज जो है ना वो एंड के लिए होना चाहिए था, तो इसीलिए अरे मैं वो वाह सेव वाह वाह। करके रखी थी। तो चलिए कृष्णा जी, आपसे शुरुआत तो करिए प्लीज। ओके, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। एक लड़की भीगी भागी सी, रोती यादों में जागी सी, मिले एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, रोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। दो लाइनें। ब्यूटीफुल। मतलब आई एम बहुत ही रियली कम वेटिंग। समय के लिए था, लेकिन आई थिंक यू शुड सिंग मोर नंबर्स सो दैट लाइक पीपल एक्चुअली वांट यू टू सिंग मोर। तो थोड़ा सा और अरे गाइए, बहुत कम समय के लिए था। अरे वाह, अच्छा चलो कोशिश करता हूँ। कोशिश। ओके, जी। व्हाट्स योर फेवरेट सॉन्ग सिरिन? लेट्स हैव अ ड्यूट, लेट्स हैव अ ड्यूट। um, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। आप Come on, Siren, come on. आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपके नूरत। Siren again. Let me just call once again, Siren. Uh, oh, yes. again disconnect. Yes, Network Siren. issue. आपकी आंखों में कुछ महके हुए थे राज है। आगे। आपकी राज है। आपकी आपकी आंखों में कुछ महके महके हुए से राज है। आपसे भी खूबसूरत आपकी आपके अंदाज। अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ। आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं। आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं। बेवजह तारीफ करना आपकी
आपकी बदमाशियों के ये नहीं अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपकी अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ। क्या बात। Shraddha Kapoor join us. Thank you so much. You have been also brilliant. Shraddha Kapoor, thank you very much for your thumbs up and likes. और राजीव जी भी बोल रहे कि awesome voice. Thank you very much, राजीव जी, for your compliment. और Rajiv ji is coming up with lot of projects, and I'm sure I'll forward your number to Rajiv ji, and he would get in touch with you. वो आपसे टच में रहेंगे सर. And प्रभु ने चाहा तो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, and he's a wonderful person. बहुत प्यारे इंसान है राजीव जी. My friend, my brother. Oh, Sirin is gone again. Let me just call her back again. Okay, let me just call Sirin. This is something very bad. जब इतना मजा आ रहा होता है तो उसमें ये चीजें जो हैं तंग करती हैं. This network issues. मैं हूँ झुम 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 झुमरू बन के नाचू बन के घूमू मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला. मंजिल पे मेरी नजर है दुनिया से बेखबर बीती बातों पे धूल उड़ाता चला. ओ आज बहुत मन कर रहा है किशोर दा के गाने गाने का. वाह. Okay, so I'm calling Sirin again. Again the network glitch, huh? Yes. इसीलिए कितना मजा आ रहा है. you know, being a performer, जो लाइव परफॉर्मेंस का मजा है ना कहीं नहीं होता वो. I swear और इतना मजा आ रहा है यार सबसे बड़ी बात. I know. आप कौन सा गाना गाने वाले? मैं तो वैसे I was just गुनगुनाइंग some किशोर दा song. जी जी. मैं हूँ झुम 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 झुमरू बन के नाचूं बन के घूमूं मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला. मंजिल पे मेरी नजर मैं दुनिया से बेखबर बीती बातों पे धूल उड़ाता चला. Beautiful. What's your favorite singer, Sirin? Who's your favorite? Actually. लता जी का बर्थडे था अभी पीछे. Yes. उसी दिन मेरा शो था मुंबई पे और उस शो में एक्चुअली मुझे एंकरिंग भी करनी थी और उस शो में मुझे गाना भी गाना पड़ा और वहां पर ऑर्गेनाइजर ने मुझे मेरे से और कोई गाना सुना ही नहीं. लता मंगेशकर मेरे पास इतने ज्यादा स्टॉक भी नहीं थे बिकॉज आई परफॉर्म इन ट्रैक्स. इट वाज रियली गुड. बट चलो एक गाना लता जी का हो जाए ड्यूट में. लग जा गले के वेरी टफ नंबर. हसी रात हो ना हो
शायद फिर इस जन्म में मुलाकात न हो, लग जा गले गले के फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से आए के हम नहीं आएंगे बार बार, पास आए के हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले डाल के हम रोल जार नसीब में ये रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से क्या बात है सर, लवली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वाओ वाओ वाओ। और मुझे याद है कि हम लोग हर टाइम पे जब हमारे यूपीएस की ट्रेनिंग में जाते थे, जब बस में चढ़ते थे यही वाला गाना शुरू करते थे, एंड जब बस में वापस आने के टाइम पे भी बस में चढ़ते थे यही वाला गाना शुरू करके फिर सारे गाते गाते आते थे। I think हमारी repo, like fantastic. Yeah, and those 8 days were excellent. And I think वो जो repo जो like minded लोगों से बनती है ना उस वक्त, नंबर 1 ट्रेनर्स, बिकॉज ट्रेनर्स के साथ वैसे भी कोई ईगोज वैसे नहीं होनी चाहिए और नहीं होती हैं, एंड उसके ऊपर व्हेन यू आर एन आर्टिस्ट एंड यू आर एन आर्टिस्ट योरसेल्फ, तो वो जो चीज एम्पैथी आती है ना, वो दैट इज एक्सीलेंट। सो वाओ दैट्स ओके। ओके सिरिन, लास्ट, बिकॉज देयर इज ओनली 2-3 मिनट्स लेफ्ट, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इंस्टा पे 1 घंटे में अपने आप बंद हो जाता है वो। सिरिन, two, 3 things would like to know. What is your favorite food? Chawal and fish. Yeah, typical Bengali. Can't help it. Jal khabo, bhat pibo. नहीं shop khabo हम. Shop khabo, okay. बीड़ी भी खाबो. Okay. The best moment of your life? When my son was born. Wow, beautiful, beautiful. कोई ऐसी चीज जो आप थोड़ा सा रिग्रेट करते हैं और शायद ना हुई होती? No. Whatever I am today, I believe that's because of my good and bad decisions. So I'm perfectly happy with them. Wow. The biggest aspiration in your life? My father. Biggest aspiration of your life? Aspiration, inspiration. I don't know, perhaps the way I look at things, the way I look at life, that can be the biggest aspiration. Okay. What is your ultimate goal in your life? I don't know really. I mean, I only live in a moment, today. So I never really thought about that, I really have to achieve so much, or I have to earn so much. Never thought that way. Probably because of my brought up. They always believe that, live for today, be happy today, and tomorrow will fall in place. So don't worry. Wow. Last question, Sirin.
Only 20 seconds are left. What do you want to do in your, life, which will give you satisfaction? Jaldi se, 10 seconds. I want to do a lot for poor people and women, especially underprivileged and children. They don't have to, be in suffer.